اور ماڑا اور پسٹی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر حملے. آپ کو بتائیں کہ 14 جوان شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پراز. بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری 2024 کو ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے دیا. ملک میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس میں صدر مملکت کی جانب سے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات سے متعلق دستاویز پر دستخط کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ پر بلا تعطل انتخابات ہوں گے. عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا. 8 فروری کو انتخابات کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں ہے، لہٰذا وفاقی حکومت 8 فروری 2024 کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے گی. سپریم کورٹ نے ملک میں انتخابات سے متعلق کیس میں قرار دیا کہ صدر مملکت کا تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا غیر آئینی تھا اور غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. ملک میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا. عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو. اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی. بہتر ہوتا الیکشن کمیشن خود ہی اعلان کر دیتا، عدالت کو مداخلت نہ کرنا پڑتی. اب 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہیے. کسی ایک الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. امید ہے اس دفعہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں تو نہیں ملی اور کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو. سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ حقائق ریکارڈ پر لاتا ہوں. آئین کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن ہو. آئین کی باقی شکیں بھی سامنے رکھنی ہے. مردم شماری کے 2 اگست کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اور مردم شماری حتمی ہو جائے تو الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کرنا ہوتی ہے. پاکستان پارٹی کا حافظ آباد کے کولو تاڑر گراؤنڈ میں ورکرز کنونشن. PP کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین اور مرکزی صدر عبدالعلیم خان کا خطاب. IPP کے ورکرز کنونشن کے پنڈال میں ہزاروں لوگ موجود تھے. جلسہ گاہ میں لوگوں کا جوش و خروش دیدنی. صدر IPP عبدالعلیم خان نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیروں سے پیسہ نکلوا کر غریبوں پر لگائیں گے. سربراہ IPP جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ بطور مسلمان ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا ہے. امید کا دامن پکڑے رہنا. ہم سب نے مل کر آپ کے لیے اللہ کی مدد سے بہتری لانی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا. اسد کیسر کے بھائی نے ویڈیو بیان میں یہ کہا کہ اسد کیسر کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسد کیسر گھر پر تھے جب پولیس اور سادہ لباس اہلکار گھر میں آئے اور سادہ لباس اہلکار اسد کیسر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے. پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ ملک میں دستاویزات کے بغیر مقیم افغان شہریوں کی واپسی کے عمل میں تیزی کے لیے مزید سرحدی مراکز قائم کر دیے گئے، جبکہ پناہ گزینوں کے بڑے پیمانے پر بے دخلی کے منصوبے پر نظر ثانی کی درخواستیں بھی نظر انداز کر دی گئی ہیں.
डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाबाहक हो गए। पुलिस के मुताबिक टांक अड्डा पर धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई और इब्तदाई मालूमात में यह बात सामने आई है कि हमले में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद दो बहनों की जायदादें उनका हिस्सा देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दो बहनों की जायदादों में हिस्सा देने का हुक्म देते हुए जायदाद न देने वाले पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। हर्जाना न देने पर उसी मालियत की जायदाद दी जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि ये केस क्लासिक मिसाल है कि रेवेन्यू अफसर की वजह से केस इल्तवा में पड़े रहते हैं। जायदाद दबाने वाले अदालती कार्रवाई के जरिए साल हर साल फवायद देते हैं। विफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से इल्लामा इकबाल के यौम विलादत पर आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 नवंबर बरोज जुमेरात को मुल्क भर में तालीमी इदारे सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। फौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। सियोनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 300 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतों की तादाद 9000 से तजावुज कर चुकी। सियोनी फौजेस ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया, जिसमें मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 3 रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि 700 से ज्यादा जख्मी और 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। मारूफ अदाकार एहसन मोहसिन अकरम ने अपने नौमौलूद बेटे के लिए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। एहसन मोहसिन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेटे को गोद में लिए हुए तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके बेटे का चेहरा इमोजी से छुपाया हुआ है, जबकि ये तस्वीर अस्पताल में उस वक्त ली गई थी जब अदाकारा ने पहली बार अपने बेटे को देखा। अदाकार ने अपनी पोस्ट में कहा कि अल्लाह के फजल से मेरा बेटा दुनिया में आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। और माड़ा और पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों पर हमले, 14 जवान शहीद हो चुके। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों पर हमले, 14 जवान शहीद हो चुके। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। आपको बताते चलें कि ओमाड़ा और पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों पर हमले, 14 जवान शहीद हो चुके। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं।
खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। अदालत उज़्मा ने कहा कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से ही हल हो चुका। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़मरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं होता, लेकिन उन्होंने के जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल ही नहीं किया गया। खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात से मुतालिक केस में करार दिया कि सदर मुमलिकत का तहरीक अदम इत्तेमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आईनी था और गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जमरे में आता है। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत का यह कहना था कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को भी एतराज नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। असद कैसर के भाई ने वीडियो बयान में कहा कि असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि असद कैसर घर पर थे कि जब पुलिस और सादा लिबास एहलकार घर में घुस गए और सादा लिबास एहलकार असद कैसर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। और आपको बताएं कि साबिक वजीर खारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन खुद ही ऐलान कर देता, अदालत को मुदाखलत न करना पड़ती। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए। किसी एक इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। उम्मीद है इस दफा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तारीख भी आ चुकी है और मौसम भी ठीक है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी और अवामी राब्ता मुहिम जारी रहेगी। मैंने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने की तजवीज दी थी। मिसाक जमहूरियत पर सब जमातों को आना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि असूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। किसी भी गैर कानूनी काम का साथ कोई जमात नहीं दे सकती। ह्यूमन राइट्स पर पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़ रहा। और इसी से मुतालिक साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार ने कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली और कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान इसाक डार ने कहा कि हकाइक रिकॉर्ड पर लाता हूं। आइन कहता है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखना पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया और मर्दमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। हम भी चाहते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन हो और पहले बजट में इलेक्शन कमीशन के लिए रकम मुख्तस कर दी जाए। 5 अरब रुपए थे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया, जबकि पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए इजाफी 16 अरब भी दरकार थे।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफजाबाद के कोलू ताड़र ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन पीपी के पैटर्न ऑन चीफ जहांगीर तरीन ने मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान के हमरा खिताब किया। आईपीपी के वर्कर्स कन्वेंशन के पंडाल में हजारों लोग मौजूद थे। जलसागाह में लोगों का जोशो खरोश दीदनी। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो गया है, वो लोग आकर फिर कहेंगे हमें एक मौका दवा दें। पूछना है कि 7 दफा पंजाब में हुकूमत दी गई है, 8वीं बार किस मुंह से वोट मांग रहे हो। 7 बार झूठे वादे किए गए, बनान लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचना है, ऐसे नहीं चलेगा, गरीबों का सुनना पड़ेगी। अमीरों से पैसा निकलवा कर गरीबों पर लगाएंगे। सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन ने इस पर कहा कि आपकी खिदमत में उम्मीद की कुछ बातें करना चाहता हूं। लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है, लोगों में मायूसी पाई जाती है, लोग मायूसी और कंफ्यूजन में घिरे हुए हैं। बतौर मुसलमान हमें मायूस नहीं होना, हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना है, उम्मीद का दामन पकड़े रहना है। हम सब ने मिलकर आपके लिए अल्लाह ताला की मदद से बेहतरी लानी है। और डेरा इस्माइल खान में टांग अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाके के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पुलिस के मुताबिक टांग अड्डा पर धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। हमले में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। पुलिस का यह कहना था कि धमाके से मौका पर खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि धमाके के नतीजे में 20 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। विफाकी हुकूमत का एक्शन, यौम इकबाल से मुतालिक खबर आपको दें कि विफाकी हुकूमत ने यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से इलाम इकबाल के यौम विलादत पर आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 नवंबर बरोज जुमेरात को मुल्क भर में तालीमी इदारे सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। यौम इकबाल के मौका पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से तकारीब मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें इलाम इकबाल की शख्सियत, जदोजहद, आज़ादी में उनकी खदमात और शायरी पर खसूसन रोशनी डाली जाएगी। इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1876 को इकबाल मंजिल सियालकोट में पैदा हुए। वो फारसी और उर्दू के मायानाज शायरों में से एक थे। और उम्मीद की किरण नजर आ चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2 बहनों को जायदाद में उनका हिस्सा देने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 बहनों को जायदाद में से हिस्सा न देने के केस की समाअत हुई। अदालत ने 42 साल के बाद 2 बहनों को जायदादों में हिस्सा देने का हुक्म दे दिया है। जायदाद न देने वाले पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद, हरजाना न देने पर उसी मालियत की जायदाद दी जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि केस क्लासिक मिसाल है कि रेवेन्यू अफसर की वजह से केस इल्तवा में पड़े रहते हैं। जायदाद दबाने वाले अदालती कार्रवाई के जरिए साल हर साल फवायद लेते हैं। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के बेटे से मुकालमे में कहा कि 42 साल से आपने धोखा दिया है, आपने 2 बहनों का हिस्सा मार रखा, आपने अटॉर्नी के जरिए बेटे को सारी जायदाद दे दी है। बहनें कितनी शरीफ हैं, क्या वो शादीशुदा हैं? आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि जुडिशल कोर्ट ने खतीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। लाहौर की जुडिशल कोर्ट के जज इमरान आबिद के रूबरू खतीजा शाह से मुतालिक केस की समाअत हुई। FIA ने लाहौर खतीजा शाह को जेल से अपनी हिरासत में लेकर अदालत में पेश कर दिया। FIA की जानिब से लीगल एडवाइजर आना एजाज खलील पेश हुए और जज से खतीजा शाह के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त कर दी। वकील FIA ने कहा कि 9 मई को खतीजा शाह ने इश्ताल अंगेज ट्वीट किए और वो ट्वीट अभी तक रीट्वीट हो रहे हैं।
خبر آپ کو دیں کہ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کی انٹیلیجنس معلومات پر مشترکہ کارروائی کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن سے ڈکیت گروہ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ و ایمونیشن برآمد۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن سے ڈکیت گروہ کے 3 ملزمان صدام حسین، کرم حسین اور طاہر حسین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ڈکیتی میں استعمال ہونے والا اسلحہ و ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں کورنگی کراسنگ، شاہ لطیف، بلال چورنگی، چمڑا چورنگی اور گودام چورنگی میں شہریوں سے لوٹ مار کرنے، اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی 200 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں ملزمان کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ دوران تفتیش ملزمان نے کراچی کے مختلف علاقوں سے چوری اور چھینے ہوئے موٹر سائیکل براستہ ہفچوں کے بلوچستان میں فروخت کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان عادی مجرم ہیں اور متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو بیمہ اسلحہ و ایمونیشن مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ سابق لیگی ایم این اے شیخ رحیل اصغر کی میاں علی نواز کے گھر آمد 15 سال کی ناراضگی دوبارہ دوستی میں تبدیل۔ شیخ رحیل اصغر نے اپنے پرانے ساتھی میاں علی نواز المعروف بھولا کو گلے لگایا۔ میاں علی نواز کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اجمل جٹ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ رحیل اصغر کی میاں علی نواز کے گھر آمد 15 سال کی ناراضگی دوبارہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ سابق ایم این اے شیخ رحیل اصغر نے اپنے پرانے ساتھی علاقہ فتح گڑھ کی سماجی شخصیت میاں علی نواز المعروف بھولا کو گلے لگایا اور میاں علی نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سابق ایم این اے شیخ رحیل اصغر کا کہنا تھا کہ میں جہاں سے بھی الیکشن لڑوں فتح گڑھ نے میرا پورا ساتھ دیا ہے کہ فتح گڑھ میرا گھر ہے۔ میں آگے یہی بات ان سے کہہ رہا تھا کہ میں جہاں سے مرضی الیکشن لڑوں فتح گڑھ نے ہمیشہ ساتھ دیا میرا۔ اور بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ ایک الیکشن میں لڑا تھا یہاں کے ایک جدی پشتی کیا رکھتے ہیں آپ، وہ کینڈیڈیٹ تھے ایم پی اے کے، وہ ہار گئے تھے، میں جیت گیا تھا۔ تو ان دوستوں کو، ان لوگوں کو، بالخصوص فتح گڑھ کے لوگوں کو، حالانکہ بہت سارے لوگ چلے گئے بیچ میں سے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرا ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ مجھے ہمیشہ یہ اللہ کے گھر میں یہ امید رہتی ہے کہ یہاں سے میں سرخرو ہو کے نکلوں گا۔ ہاں کوئی غلطیاں میری بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، میں نے کسی کی دلداری کی ہوگی، کسی سے میں نے بات خفگی سے کی ہوگی، کوئی اس طرح، وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں۔ پھر جیسے یہ بچوں کی طرح تھا میرے، اور میں اس کے ساتھ گاڑی میں ہر وقت سفر کرتا تھا، سفر ہی اس کے ساتھ کرتا تھا۔ علاقہ فتح گڑھ کی معروف سماجی شخصیت میاں علی نواز المعروف بھولا کا کہنا تھا کہ میں اپنے بزرگ شیخ رحیل اصغر کا شکر گزار ہوں جو میرے گھر تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی۔ جی شیخ رحیل اصغر صاحب سے میرا 85 سے بڑا اچھا ریلیشن تھا۔ 10-15 سال پہلے کچھ غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے ناراضگی چل رہی تھی۔ اب اہل محلہ نے، دوستوں نے کاوش کر کے ہماری آپس میں صلح کروائی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اکٹھے چلیں گے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سارے معاملات ہیں ان سے انشاءاللہ نیکسٹ منلی کا ساتھ دیں گے، بلکہ شیخ رحیل اصغر کا ساتھ دیں گے جہاں بھی جائے گا شیخ رحیل۔ جبکہ علاقے کی سماجی شخصیت ڈاکٹر عمران کا کہنا تھا کہ شیخ رحیل اصغر اور میاں علی نواز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 15 سالہ ناراضگی کو ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ شیخ صاحب کا یہ بہت بڑا پن ہے کہ وہ چل کے ادھر آئے اور علی نواز صاحب کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اپنا جو ہے نا پیچ اپ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو مسئلہ مسائل ہیں عوام کے ادھر کے وہ میاں صاحب نے ہی جو ہے نا وہ ان کے حل کروانے ہیں، شیخ صاحب کو کہہ کے، اور پہلے بھی کرواتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب بھی کروائیں گے۔ اس موقع پر علاقہ فتح گڑھ کی سیاسی و سماجی شخصیات نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین نواز کے ساتھ اجمل جٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ لاہور فیسٹیول کا اصل مقصد عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ لاہور کی تہذیبی و ثقافتی اقدار روایات کی ترویج کو اجاگر کرنے کے لیے فیسٹیول کا انعقاد لائق تحسین ہے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی دربار حضرت شاہ چراغ پر لاہور کے سلسلہ میں محفل سماع کے موقع پر گفتگو، کہا کہ صوفیاء کرام نے روادارانہ اصلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی، وہ اخوت، بھائی چارے، انسان دوستی، احسار و محبت جیسے جذبوں سے آراستہ ہیں۔ ان کے فکر و عمل کا یہ فیضان پورے خطے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور کر رہا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں اہم میٹنگ۔
डॉक्टर अनुश मसूद ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बारे में तमाम डिवीजन की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया। कहा कि तमाम अमूर की मॉनिटरिंग खुद करूंगी। तमाम एसपीज रोजाना की बुनियाद पर एक सर्कल विजिट करें। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। खबर आपको दें कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर में हुई। ज़का अशरफ ने शाहिद अफरीदी की क्रिकेट के लिए खदमात की तारीफ की है। कहा कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हीरो और सुपरस्टार हैं। हमें अफरीदी के साथ काम करके खुशी होगी। शाहिद अफरीदी की जानिब से ज़का अशरफ की कोशिशों की तारीफ। नौजवान क्रिकेटर्स को ग्रूम करने में दिलचस्पी का इजहार। कहा कि नौजवान क्रिकेटर्स की सलाहियतों से फायदा उठाना बहुत जरूरी है। हैदराबाद से खबर आपको दें, जहां मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कासमाबाद हैदराबाद में मुख्तलिफ वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें लेबर रूम शोबा, डेंटल शोबा, ईटीटी, पोस्ट अपर वीडियो वार्ड और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट एको मिशन शामिल है। मेयर काशिफ अली शोरू का यह कहना था कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसानियत की खदमात करना एक नेक अमल और इबादत है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की का इन्हिसार भी सेहतमंद मुआशरे के क़याम में होता है और अवाम उन्नास की सहूलत के लिए मजीद नए यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों को मुखातिब करते हुए कहा कि मरीजों की देखभाल पर भरपूर तवज्जो दी जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द में शसूक अयूबे और रजी मोहब्बत हैदर ने बतौर नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शिरकत की। वासा लाहौर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से वासा के सेंट्री वर्कर्स की सेहत और हिफाजत के लिए नए SOPs भी बनाए गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत मीटिंग मुनक्किद की गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द में शोसोके अवोबे और रजी मुज्तबा हैदर ने नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर शिरकत की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सेंट्री वर्कर्स की 3 रोजा तरबीती सेमिनार के इनेकाद पर एमडी वासा ने इस कोशिश को सराहा। वासा लाहौर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से वासा के सेंट्री वर्कर्स की सेहत व हिफाजत के लिए नए SOPs बनाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वासा लाहौर के ट्रेनिंग सेंटर में वासा मुलाजमीन की इस्ताद कार में इजाफे के लिए तरबीती प्रोग्राम शुरू करेगा। वासा के सेंट्री वर्कर्स वासा लाहौर का फख्र हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कहा, सेंट्री वर्कर्स मुआशरे के असल हीरो होने के हवाले से वासा लाहौर और ILO मुश्तरका अवामी आगाही मुहिम शुरू करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वासा लाहौर को माशी तकनीकी तावन भी फराहम करेगा। इस मौके पर DMD मियां मुनीर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग ज़ईमा ईमान और अब्दुल साम भी शरीक थे। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। और आपको बताएं कि तालीमी इदारों को सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स पैदा करने होंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 7वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन से खिताब। कहा कि निगरान वज़ीर आज़म सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और अवैस रऊफ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटरी की प्रिंसिपल डॉक्टर महबूब अरूज ने भी अपना इजहार ख्याल किया। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की यह खसूसी रिपोर्ट। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 7वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन ICHPE 2023 मुनक्किद हुई, जिसमें चांसलर व गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान मेहमान खसूसी, जबकि निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ, डिप्टी चेयरमैन उज़ैर रऊफ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल डॉक्टर महबूब अरूज, डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत मुल्क की मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स समेत गैर मुल्की मंदोबीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज,
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वैसे भी मॉनिटर या प्रीफेक्ट लगी हुई है सब यूनिवर्सिटीज़ की एंड my very respected and worthy vice chancellors, I see vice chancellors of all the very prominent or many of the most prominent medical universities and colleges of Pakistan. निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जुवैद अकरम ने कहा कि This conference and many conferences held by University of Lahore under the able leadership of Awais and Mavish and the entire team, it's a great thing. I think ideally as a government we should be doing it, but thank you so much for supporting us to produce good human beings which will then be good doctors and nurses and paramedical. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ ने कहा कि It's a matter of great honor and privilege for me to welcome you all on the 7th International Conference on Health Professionals Education. It has taken us a long time, and I was just sitting here and enjoying the fact that it's been nearly 10 years, and I would like to thank Dr. Gohar for the fact that he was the pioneer of medical education. And then I saw Dr. Saima, obviously. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री प्रिंसिपल डॉक्टर मैविश अरूज ने कहा कि With over 1,000 participants, 37 pre-conference workshops, a course on academic governance and leadership, and along with the collaboration from 25 medical institutions, this conference stands as a nexus for medical education in Pakistan. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन में मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन ने भी इज़हार ख्याल किया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ अली फारूक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन मानी पहलवान की पहली बरसी जामिया फरूकिया हनफिया गढ़ी शाहू में मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। बरसी की तकरीब में पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। राना फारूक सईद, आसिफ हाशमी, फैसल मीर, डॉक्टर क़याम हफीज और राना जमील मंच मौजूद थे। अफनान सादिक, राना बिलाल, आरिफ खान, सुहेल मलिक, अकरम कंबो, नसीर अहमद और चौधरी सज्जाद नजीर ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। खबर आपको दें कि सूबाई वजीर महकमा लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद का एहसन इक़दाम FMD वैक्सीन की जरूरत पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए निजी शोबे को शामिल करने का फैसला कर लिया। मार्केट में बेहतरीन कंपनियों के साथ वैक्सीन का मुआहदा किया जा सकेगा। इसी पर मजीद जानेंगे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट। आज महकमा लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने शिरकत की। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिफ सलमान, डायरेक्टर जनरल रिसर्च और दीगर मुतल्लिका हकाम भी मौजूद थे। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक FMD कंट्रोल्ड प्रोग्राम के हवाले से एक कदम बढ़ाते हुए लेवल 3 पर जाएगा और FMD कंट्रोल्ड कंपार्टमेंट बनाएगा, जबकि GCC और लेवल 3 ममालिक में डेयरी और गोश्त की तजारत बड़े पैमाने पर शुरू की जाए। इसके साथ महकमा लाइफ स्टॉक वफाकी हुकूमत की पेशगी मंजूरी के साथ नेशनल FMD कंट्रोल्ड प्रोग्राम की तश्कील के लिए काम करेगा। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक ने हिदायत की कि महकमा लाइफ स्टॉक मकामी तैयारशुदा FMD वैक्सीन की थर्ड पार्टी की तौसीक और जांच के लिए फ्रेमवर्क को कानूनी शक्ल देने के लिए काम करे और UVAS में सस्पेंशन कल्चर प्लांट प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए जो सूबाई वजीर की सरबराही में हुकूमत के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ तहकीकी मनसूबों के हवाले से FMD पर पोस्ट ग्रेजुएट PhD स्कॉलर के लिए एक साला फॉलोशिप प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्राइवेट कंपनियों को नमूनों की फरोख्त से मुतल्लिक फ्रेमवर्क को कानूनी शक्ल देगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत शाहराह फैसल की खूबसूरती से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एयरपोर्ट से मुल्की व गैर मुल्की अफराद की आमद शाहराह फैसल से होती है। एयरपोर्ट से आए अफराद शाहराह फैसल को बतौर कराची का अपना तासुर लेते होंगे। मैं चाहता हूँ कि शाहराह फैसल खूबसूरत नजर आए। पहले मरहले में शाहराह फैसल और फिर बाकी खास सड़कों और चौराहों को खूबसूरत बनाया जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में
ADIG انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کی شرکت. تبدیلی تفتیش بورڈ میں اغوا، ڈکیتی، چوری اور چیک ڈس آنر کے 7 مقدمات زیر بحث آئے. تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا. شفیق اعجاز، کیسر حبیب، اکرام الحق چودھری، شہناز بی بی ڈکیتی جبکہ ندیم چیک ڈس آنر کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے. بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات بھی جاری کیے. عمران کشور نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کو وارننگ دی اور شوکاز بھی جاری کیا. قصور سے دل دہلانے والی خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ قصور میں خاتون سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار کر لیا گیا. مقدمہ بھی درج کر لیا. تھانہ صدر چونیا کے حدود میں زیادتی کرنے والے درندہ صفت ملزم ریاست کو بقوا کے چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا. ملزم کے خلاف تمام تر شہادتیں اور ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں. SHO تھانہ صدر چونیا عابد محمود چھینا نے جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی مسمات کی فوری داد رسی کی ہے. مقدمے کی تفتیش ماہر تفتیشی افسران ASI فضیلت محبوب اور سب انسپیکٹر نیاز احمد کے ذریعے عمل میں لائی گئی. قصور پولیس طارق عزیز سندھو DPO کی سربراہی میں عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے. پرتگالی سفیر فیڈریکو سلوا، روسی سفیر ڈینیلیا گونچ اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی وزیر خارجہ جلیل جیلانی سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. ملاقات میں پرتگال، رشیا اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر گہرا تبادلہ خیال کیا گیا. حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی. RPO شیخوپورہ بابر سرفراز الپا کے حکم اور DPO شیخوپورہ زاہد نواز مرود کی ہدایت پر CIA شیخوپورہ کے دبنگ DSP عدنان بخاری کی سربراہی میں انچارج CIA محمد عمران کا ایکشن. شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی واردات کرنے والے ڈاکو داؤد کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا بھی انکشاف کیا، جبکہ ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی سمیت 2 رائفلز اور 2 جدید پسٹلز بھی برآمد ہوئے ہیں. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کھیلوں کی دنیا سے خبر آپ کو دیں کہ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے 34ویں میچ میں افغانستان نے نیدرلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں چوتھی کامیابی اپنے نام کر لی ہے. افغان بولرز کے سامنے نیدرلینڈ کی ٹیم جم کر نہ کھیل سکی اور 47 اوورز میں ہی 179 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی. سائی برینڈ 58 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. نیدرلینڈ کا 180 رنز کا ہدف افغانستان نے 32ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. حشمت اللہ شاہدی 56 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکا اشرف سے سابق کپتان بوم بوم شاہد افریدی نے ملاقات کی. اعلامیے کے مطابق دونوں کی ملاقات PCB ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوئی. زکا اشرف نے شاہد افریدی کی کرکٹ کی خدمات کی تعریف کر دی اور کہا کہ شاہد افریدی پاکستان کے ہیرو اور سپر سٹار ہیں. ہمیں آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی. شاہد افریدی نے زکا اشرف کی کوششوں کی تعریف اور نوجوان کرکٹرز کو گروم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا. شاہد افریدی کا یہ کہنا تھا کہ نوجوان کرکٹرز کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. اور عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں. ملک میں جنگی صورتحال ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری تاحال جاری ہے. صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 300 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. مجموعی شہادتوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر چکی. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی مظلوم
इंतहा को पहुंच चुके हैं। सियोनी फोर्सेस ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाह गजीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया, जिसमें मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा जख्मी और 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। सियोनी फोर्सेस ने जबालिया के बाद अल-ब्रेज कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइली फौजों ने कौमी मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बम बरसाए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन की जानिब से इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े, जिसके बाद यह बिल सेनेट जाएगा, जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और उसके बाद यह बिल ऐवान सदर जाएगा, जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। और अब बात करते हैं शोबिस की दुनिया से मुतालिक। तो आपको बताएं कि मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान और उनके प्रोमोटर सलमान अहमद ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की अदालत से 22 लाख डॉलर का केस जीत लिया है। कैलिफोर्निया के मकामी प्रोमोटर ने राहत फतेह अली खान और उनके प्रोमोटर पर भत्ता वसूली करने, माली दबाव डालने और हत्या की इज्जत के इल्जाम आयद किए थे। जराये के मुताबिक बॉलीवुड इवेंट्स के बिक्रमजीत सिंह ने कॉरल कालरा जीवन साथी के साथ मिलकर राहत और प्रोमोटर सलमान अहमद से मुआहिदा किया। राहत फतेह अली खान का शो 5 अक्टूबर 2019 को कैलिफोर्निया में होना था। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक बिक्रमजीत सिंह ने शो से कबल ही राहत और सलमान अहमद पर $30,000 भत्ता मांगने और दीगर इल्जामात लगाए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने गजा में इसराइल की फजाई बमबारी को फंसी हुई आबादी पर जानबूझकर बमबारी और कत्ल करार दे दिया है। एंजेलिना जोली ने सोशल मीडिया पर इसराइली जारहियत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये एक ऐसी बेबसी आबादी है जिन पर जानबूझकर बमबारी की जा रही है, और वो खामोश हैं, जिनके पास भागने या जाने की कोई भी जगह मौजूद नहीं है। एंजेलिना जोली ने इसराइल जारहियत के हवाले से लिखा कि गजा तकरीबन 2 दहाइयों से एक खुली फजा में कैद है और तेजी से इज्तमाई कब्र बनते जा रहे हैं। यहाँ मरने वालों में 40% मासूम बच्चे शामिल हैं, जो कि अफसोसनाक है, और यहाँ पूरे खानदानों को कत्ल किया जा रहा है। और खबर आपको दें कि भारतीय अदाकारा मॉडल उर्फी जावेद अपने बेबाक अंदाज की वजह से आए रोज ही खबरों की जीनत बनी रहती हैं, लेकिन यही बेबाक अंदाज अब उनके पुलिस स्टेशन जाने की वजह भी बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3 नवंबर को सुबह उर्फी जावेद मुंबई में नामुनासिब कपड़े पहने एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी, जिसके बाद अदाकार को पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया। उर्फी जावेद की गिरफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल, जिसमें भारतीय खवातीन पुलिस एहलकारों को उर्फी को जबरदस्ती रेस्टोरेंट से लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। और खबर आपको दें कि मारूफ अदाकार एहसन मोहसिन अकरम ने अपने नौमौलूद बेटे के लिए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। एहसन मोहसिन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेटे को गोद में लिए हुए तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके बेटे का चेहरा इमोजी से छुपा हुआ था, जबकि यह तस्वीर अस्पताल में उस वक्त ली गई थी जब अदाकारा ने पहली बार अपने बेटे को देखा। अदाकार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अल्लाह के फजल से मेरा बेटा दुनिया में आ गया है। मेरे बेटे, मैंने आपको अपनी जिंदगी में पाने के लिए सही वक्त का बहुत इंतजार किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मारूफ अदाकारा अरमीना खान ने साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम के हालिया बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। गुज़िश्ता रोज शनीरा अकरम ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि मैं खुद को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रही हूँ। शनीरा अकरम ने कहा था कि मैंने कभी अपने ख्यालात और एहसासात को बयान करने में खौफ या हिचकिचाहट महसूस नहीं की, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हूँ। उन्होंने मजीद कहा था कि दरअसल मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे, और अगर उससे किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं मुआज़रत ख्वाह हूं।
نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے رواں مالی سال کے سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف جو کہ 9,400 ارب روپے رکھا گیا تھا اسے کم کر دیا ہے اور حکام سے کہا ہے کہ وہ اگلے مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کو 15 ٹریلین روپے 15,000 ارب روپے یعنی بڑھانے کے منصوبے پر کام کریں۔ وزیر کے ریمارکس کے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی تنظیم نو کے حوالے سے ایک اندرونی اجلاس کے دوران سامنے آیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے FBR کے ممبران کی کارکردگی پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے لیے ہر طرح کا سینیریو ہمارے پاس موجود ہے۔ چینا سوامی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مکی آرتھر کا یہ کہنا تھا کہ شاداب خان کے عبوری ٹیسٹ ہوئے جو بظاہر ٹھیک ہیں، تاہم فی الحال ہم شاداب پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ مکی آرتھر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے کھلاڑیوں کے لیے ہر وینیو ایک نیا وینیو ہوتا ہے۔ کھلاڑی نے ٹی وی پر IPL اور ٹیسٹ میچز دیکھے ہیں، ہم ہر گیم جیتنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے لیے ہر طرح کا سینیریو ہمارے پاس موجود ہے۔ چینا سوامی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ شاداب خان کے عبوری ٹیسٹ ہوئے ہیں جو بظاہر ٹھیک ہیں۔ اور اسی کے ساتھ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کوہنور نیوز۔